أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Dear students, today we are starting some part of hepatology. That is the diseases related to the liver. And to me, the topic is given, which is a rare topic. It is not a common topic. The common topics are the interpretation of the liver function tests, the acute viral hepatitis, the chronic viral hepatitis, the cirrhosis of the liver. These are the common topics related with the liver. I have been given an atypical topic, and I have seen only 3 cases in 43 years of my life. Now these cases are only 3. Because I already said that I usually see different type of cases, although my subject of interest is clinical cardiology. But I usually see the different cases. Now, what are the functions of the liver? What are the primary functions of the liver, and what are the other functions of the liver? The primary functions of the liver are the bile production and excretion of the bile, cholesterol, hormones and drugs, metabolism of the fats, proteins and carbohydrates, enzyme activation, storage of glycogen, vitamins and minerals, synthesis of the plasma proteins such as albumin and globulins and clotting factors. Now these are the functions which are related with the liver. So there are other functions of the liver as well, because the liver has got plenty of work to do. It is 1.5 kilogram of weight. It is in right hypochondrium. And there is a double blood supply which is going to the liver. And 1/6 or 1/5 of the cardiac output is going to the liver. इसमें से सुपर अगर फंक्शन ऑफ द लिवर देखेंगे तो वो मेटाबॉलिक फंक्शन है. The metabolic function of the liver is the main functions. All metabolisms are dependent on the integrity of the liver. Carbohydrate metabolism or fat metabolism or the protein metabolism, amino acid, vitamin metabolism, these are related with the liver. And when it disturbs, the function disturbs, specifically speaking the metabolic type of function, there is a scenario which comes in front of you. Sometimes it is very, very simple, and sometimes it is very, very confusing. Something about atypical hepatitis. My colleague has already done on this subject, hepatitis. Very well done by him. He has done it. My subject is not typical hepatitis, it is atypical hepatitis. The scenario is a 32-year-old housewife who was on the treatment of the systemic lupus erythematosus since 2 years, presented with the 2 episodes of hematemesis in 6 hours. On examination, the temperature is 99 degrees Fahrenheit, pulse 107 per minute, high volume. Pulse is high volume because she may be anemic, because she lost the blood. Anemia was positive, jaundice was positive, pedal edema was positive, palmar erythema was positive. There are scattered spiral angiomas, but plus the butterfly rash on the face. Liver is 6 cm palpable. Spleen is 3 cm palpable. The shifting dullness was positive.
hemoglobin is 7.9 gram. The mean corpuscular volume is 77.5 liter. The total leukocyte count is 3,100. The platelet is 65,000, which is thrombocytopenia, and the leukopenia with a microcytic hypochromic type of anemia. Now, total bilirubin is 3.9, which is higher. Indirect is 1.2, which is higher. Although the direct bilirubin is also higher. ALT is 167, which is higher. AST 213 higher. ALP, alkaline phosphate, is 190, which is higher. Gamma GT is 235, is much higher. And PT INR, it should be less than 1.9. It is 1.9. It is much higher. It means that there is decompensation of the liver with the other peripheral stigmata of the chronic liver disease in this patient. The chronic liver disease is there in this patient. जान छुड़ाने के लिए सबसे आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करें, chronic liver disease. What is the differential diagnosis? Chronic liver disease. फिर पूछा कि what is the differential diagnosis? So it is a chronic liver disease. That's all. The chronic liver disease is the terminology which is misnomer to the Americans. American College of Gastroenterology do not accept this terminology as such unless you describe this terminology. What do you mean by this terminology? The duration, the features, etc. Then they will say that it is chronic hepatitis. There are other diseases related to the liver. It may be acute viral hepatitis. Let us start with the very fuzul type of a differential diagnosis. It may be the other type of hepatitis. That is maybe a other than viral, other than bacterial. It may be mycobacterium involving the liver and causing the liver to damage, and that is called the granulomatous type of hepatitis. It may be the duration which causes the liver to damage, that is called chronic hepatitis. It may be some clinical features which are related with the chronic hepatitis, which is known as pre-cirrhosis. There are features which are indicative of the increased pressure in the portal vein, that is called portal hypertension. And there is a disease which is known as cirrhosis of the liver. Cirrhosis is a specific terminology you are using. If you are not sure that you are dealing with the cirrhosis or pre-cirrhosis, or you are not dealing with the increased portal pressure or relapsing type of hepatitis, etc., तो उनको बंद कर दिया जाता है एक terminology में, and that is chronic type of hepatitis. That is wrong diagnosis. If you diagnose this condition in America and in British, you will become failed in that examination. Okay, fine. So this is the differential diagnosis. It is the diagnosis which is related to the liver. So all I have said, this is the differential. How will you further investigate? Investigate, definitely. The liver should be investigated along with the other routine investigations. What is the specific likely diagnosis? You have to rule it. This is the condition in front of you is a cirrhosis of the liver. Because it has got liver palpable, there is evidence of pidgin edema, and there are evidence of very high evidence of increased pressure, portal pressure. The patient has developed cirrhosis of the liver. It may be compensated cirrhosis of the liver, or it may be decompensated cirrhosis of the liver. ये यहाँ बहस नहीं हो रही है, हो रही है ये कि cirrhosis of the liver है ये.
Now, cirrhosis of the liver, this is the most likely diagnosis. What are the causes of the cirrhosis of the liver? अभी तक 100 लोगों से सिरोसिस ऑफ लिवर पर क्वेश्चन किया गया है, जिसमें से 4 या 5 बाहर से आए हैं. दे आर डूइंग MBBS और MD फ्रॉम इंग्लैंड और कनाडा और अमेरिका और इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा. मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज सिरोसिस ऑफ द लिवर. दे सेड इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिवर व्हिच कॉज फाइब्रोसिस. ये तमाम के तमाम लोगों ने यही जवाब दिया है. Now how the cirrhosis is described, this is the problem. आपने जो डायग्नोसिस बनाई है सिरोसिस ऑफ लिवर की, डेफिनेशन जो बनाई है वो ये बनाई है जो अभी मैंने बताई. मैं बता रहा हूँ, ये और से सुन लीजिएगा और आखिरी मरतबा सुन लीजिएगा. दिस इज द करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर. But I visited England. I asked this question to my colleague, and when I explained this answer, because he was also a teacher, he was very happy to listen to my answer. So वही चीज़ जो मैंने उनको बताई थी मैं आपको बताता हूँ. This is the chronic relapsing, remitting inflammation of the liver plus there should be evidence of necrosis of the liver. जब necrosis होता है तो थर्ड पॉइंट आ जाता है, and that is the removal of the debris plus fibrosis of the liver plus fibrosis. जब fibrosis होता है लिवर का, एक तो पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया, फिर नंबर 2 नंबर बताया, उसमें लाजमी होना चाहिए, और थर्ड है फाइब्रोसिस होना चाहिए. एक हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल के अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए. अभी फाइब्रोसिस है, पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस हो सकता है, पोर्टल कैनाल के चारों तरफ हो सकता है पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस. पीसमील टाइप का फाइब्रोसिस हो सकता है, ये ब्रिजिंग फाइब्रोसिस हो सकता है, ये कई टाइप का फाइब्रोसिस हो सकता है, लेकिन फाइब्रोसिस है. इसका एविडेंस होना चाहिए. फिर उसके बाद चौथी जो शर्त है इसकी, वो है रीजनरेशन होना चाहिए. इसके बाद आपको एविडेंस ऑफ रीजनरेशन चाहिए यहाँ पे, रीजनरेशन, क्योंकि हेपेटाइटिस से पावरफुल सेल, रीजनरेटिंग सेल बहुत ही कम मिलेंगे आपको. आप 1/3 लेवल निकाल के बाहर फेंक दीजिए, वो 2 वीक के अंदर दोबारा 1.5 किलो हो जाएगा. नो दैट इन cases of the hepatic transplantation, hardly they put 1 to 2 gram of liver inside and they stop the पुराना जो लिवर है उसको बंद कर देते हैं. जो नया जो लिवर डालते हैं वो 1 to 2 ग्राम होता है. वो बढ़ के जो है वो 15 दिन के अंदर किलो 1.5 किलो हो जाता है, वो उसकी जगह ले लेता है. यही है ना, दिस इज हेपेटिक ट्रांसप्लांटेशन. तो थिंग इज दिस कि हमारे पास शर्त ये होनी चाहिए सिरोसिस और लिवर के लिए कि हमारे पास एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, एविडेंस ऑफ नेक्रोसिस होना चाहिए. नंबर 3, हमारे पास एविडेंस ऑफ फाइब्रोसिस होना चाहिए. नंबर 4, हमारे पास एविडेंस ऑफ दी डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, लिवर का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए. नंबर 5, डिस्ट्रक्शन हो गया तो देयर शुड बी एविडेंस ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रीजनरेशन, दैट इज द नोड्यूल, रीजनरेटिंग नोड्यूल्स. उसके अंदर एविडेंस होना चाहिए किसी किस्म का रीजनरेशन का होना चाहिए. मैंने नोड्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया क्योंकि जो हमें मॉर्फोलॉजिकली नज़र आता है वो नोडुलर नज़र आता है. जैसे माइक्रो भी हो सकता है, मैक्रो भी हो सकता है. अगर ये 4 शर्त पूरी करता है लिवर तो ये सिरोसिस होगा. अगर ये 4 या 5 शर्त पूरी नहीं करता है तो ये लिवर का सिरोसिस नहीं होगा. इट में भी पीरोसिरोसिस होगा,
It may be chronic hepatitis होगा, it may be some other disease of the liver होगी, लेकिन cirrhosis नहीं होगा. अब ये सिरोसिस जो है अगर कंपनसेट कर जाता है, अपने फंक्शन को कंपनसेट कर लेता है, आप मैनेजमेंट करते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, मैनेज करते हैं जो जिस वजह से भी हुआ है, तो वो जो लिवर है वो नॉर्मल हो जाएगा या करीब करीब नॉर्मल होने की कोशिश करेगा, तो वो कंपनसेशन हो जाएगी उससे. इट इज़ कॉल्ड कंपनसेटेड सिरोटिक ऑफ लिवर. लेकिन बात कंडीशन में आप देने के बावजूद भी मैनेजमेंट को आप नहीं कर सकते. That is called decompensation of the cirrhosis. The commonest cause of the cirrhosis of the liver in the world is viral hepatitis. It may be viral hepatitis B or it is viral hepatitis C, and in some specific cases it is E also. There is some serotypes of the hepatitis C which is causing the cirrhosis of the liver. Other causes आपको पता है कि alcohol is the cause. Alcohol may cause the cirrhosis. तीसरी है drug induced. Drugs, and there are a lot of drugs which can cause the destruction of the liver and cause actually cirrhosis. फिर उसके बाद जो है ना वो metabolic diseases, infiltrating diseases हैं liver की, which can cause the liver cirrhosis. उसके बाद जो है ना वो चीज़ें हैं जो पॉइजनिंग हैं, पॉइजनिंग्स हैं, फूड पॉइजनिंग्स, स्पेसिफिक पॉइजनिंग्स. कुछ जगह हैं जहाँ पे वो आपको बस सब्ज़ी नहीं मिलती, वही सब्ज़ी मिलती है जो खानी पड़ती है, और उनके अंदर जो है हेपेटोटॉक्सिन्स होते हैं, जैसे एफ्लाटॉक्सिन्स. दिस विल कॉज दी प्रॉब्लम. और कसावा होता है इंडिया में, which can cause the destruction of the liver and causing the cirrhosis of the liver. ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है ना. फिर ये हो सकता है कि पॉसिबल कि ये जो है कि बिलियरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से सिरोसिस हो गया, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया. दिस इज पॉसिबल. बैक प्रेशर ज़्यादा हो जाए राइट वेंट्रिकल का, उसका प्रेशर ट्रांसमिट हो राइट वेंट्रिकल से लिवर में और परसिस्टेंट हो जाए तो कार्डियक सिरोसिस हो जाएगा. ये सारी की सारी चीज़ें इस कंडीशन के अंदर जो आपके सामने पेश की गई हैं, एक सारी की सारी रूल आउट कर दी गई हैं. इसके अंदर वो रूल आउट कर दी गई हैं, और इसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा हार्ड डेटा पहले ही दे दिया है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ. जिन्हें किताबों में ये आपको नहीं मिलेगी. एंड दैट इज दी सिस्टमिक लिवर एरिथ्रोसिस पे ऑलरेडी है. अब या तो SLE ने बजाते खुद लिवर इन्वॉल्व किया है यहाँ पे, या जो ड्रग्स SLE के लिए दी गई हैं उसने लिवर इन्वॉल्व किया है. दोनों सूरतों में सिरोसिस ऑफ द लिवर हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजीज़ है जो कॉज कर रही है, जो आखिरी मैंने छोड़ दी थी, ये वो डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ दीज आर दी एंटीबॉडीज़ which are reactive against the liver, and it is known as autoimmune hepatitis. इसका सॉफ्ट एंड हार्ड डेटा से पता चला सिरोसिस लिवर है. सारी की सारी चीज़ें एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी आपको. मैंने सारे के सारे इटियोलॉजी ऑफ दी आपको सिरोसिस बताई. एक्सक्लूड होगी जो आखिर में रह जाएगी, इट मे बी ड्रग, इट मे बी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस. तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, और कुछ जो है मैंने आपसे पहले कहा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, विल्सन डिजीज़ है, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है. और फिर उसके बाद जो है ना वो डिजीज़ रह जाती हैं जो लिवर को प्राइमरी इन्वॉल्व नहीं करती हैं तमाम लोगों को, लेकिन ऑटोइम्यून होती हैं वो इन नेचर. जैसे SLE है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, शॉगरेन सिंड्रोम है. सेकेंडरली इन्वॉल्विंग द लिवर, प्राइमरीली नहीं कर रहा, सेकेंडरली कर रहा है. Now this is the differential diagnosis which I have made. पर इसमें एक और चीज़ डाली जाएगी, इट इज प्राइमरी ऑटोइम्यून डिजीज़. यहाँ तो सेकेंडरी ऑटोइम्यून डिजीज़ है बिकॉज SLE वाज ऑलरेडी देयर. इसमें एक और चीज़ डाली जाएगी, इट इज प्राइमरी ऑटोइम्यून डिजीज़.
इन्वेस्टिगेशन है, सीरम एल्ब्यूमिन कराएंगे, ग्लोबुलिन है, एजी रेशियो है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, फाइब्रो स्कैन ऑफ द लिवर है, सीटी एब्डोमेन विद कंट्रास्ट है, रोमेटॉइड फैक्टर विद एंटी सीसीपी है, एएनए प्रोफाइल है बहुत लंबा चौड़ा, एंड लिवर बायोप्सी। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ। The thing is this: the SLE in systemic lymphohematosis, the thousands of antibodies have been detected. कुछ को उन्होंने किताबों में लिख दिया है, कुछ को उन्होंने किताबों में नहीं लिखा है। मिसाल को एएनए को लिख दिया है, एंटी डबल डी स्टैंडर्ड डीएनए को लिखा है, स्मूथ मसल एंटीबॉडीज लिखी हैं, एएनए लिखी, इसके अलावा एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी लिखी हैं, एंटी एरिथ्रोसाइट एंटीबॉडी लिखी है, बहुत सारी एंटीबॉडीज नहीं लिखी हैं। अब वो लिवर के अंदर जो टेक्सचर है ना, आप हेपेटोसाइट पोर्टल ट्रैक्ट है, आपको मालूम है, इसके अंदर, इसमें अंदर से बाइल जा रहा है, बाइल फिर पीछे से कनेक्शन है इसका बीना केवा के साथ। अब कितने सारे स्ट्रक्चर हैं लिवर में, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज अगर प्रोड्यूस हो जाए तो क्या कर लेंगे? जब बकल म्यूकोसा के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकती हैं और वह अल्सर कर सकती हैं, जबकि एंटीबॉडी जो है रूट ऑफ द हेयर के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती हैं और उसे आदमी को गंजा कर सकती हैं, तो आप कौन होते हैं? Therefore, we will do the ANA profile and liver biopsy. Liver biopsy याद रखिएगा is the ultimate solution. इसहाक एंड नॉडल इसके अंदर स्कोरिंग सिस्टम है इसका, और उसके ज़रिए जो है ये बताया जाता है कि ये इसकी जो फाइब्रोटिक टेंडेंसी है वो कितनी है। सो वी आर डीलिंग विद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बिकॉज टाइम इज लेस एक्चुअली। अब ये सारे सब्जेक्ट, दिस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैं उनको पहले पीजी इसको पढ़ाता रहा हूँ एंड दे एंजॉयड दिस सब्जेक्ट बिकॉज फाइनल ईयर आपको कितना आना चाहिए सवाल ये पता होता है, वो बताया जा रहा है। तो ऑटोइम्यून डिजीज हेपेटाइटिस इज द हेपेटाइटिस विच में बी ए प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप। सेकेंडरी जो है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस वो है कि जिसे ऑलरेडी आपने डायग्नोज पहले ही किसी की कंडीशन को किया हुआ है एज ऑटोइम्यून डिजीज। सेकेंडरी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है। प्राइमरी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है जिसके अंदर कोई एविडेंस कहीं पे भी नहीं मिला आपको किसी भी किस्म की ऑटोइम्यून प्रोफाइल का। ऑटोइम्यून प्रोफाइल सारा करा दिया लेकिन ऑटोइम्यून प्रोफाइल या प्रेजेंटेशन ही नहीं मिली। तो इसमें जो है ना अब किया जाएगा, एक्यूट मैनेजमेंट किया जाएगा। ज़ाहिर पेशेंट के अंदर जो है ना, मैंने कहता है हेपेटाइटिस हुई है, और कल जो है मैंने जो लेक्चर दिया हेपेटाइटिस पे दिया था, तो उसको मैनेज किया जाए हेपेटाइटिस को। हेल्दी लिवर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का अगर आप लिवर देखेंगे रेडिश होगा, इसके ऊपर जो है ना बहुत से नोडुलर आपको एरप्शंस मिल रहे होंगे। सेल्फ परपेचुएटिंग हेपेटोसेलुलर इन्फ्लेमेशन ऑफ अननोन कॉज, बट इट में बी एसोसिएटेड विद द डिजीज। ये प्राइमरी की बात कर रहा हूँ ना, प्राइमरी में तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, अगर ये है तो पेरिपोर्टल हेपेटाइटिस, हाइपरगामाग्लोबिनेमिया होना चाहिए इसमें, सीरम लिवर एसोसिएटेड ऑटो एंटीबॉडीज। ये शर्त लगाई है इन्होंने कि आपको एविडेंस ऑफ पेरिपोर्टल हेपेटाइटिस होना चाहिए, हाइपरगामाग्लोबिनेमिया होना चाहिए, इसके अंदर सीरम लिवर एसोसिएटेड ऑटो एंटीबॉडीज होनी चाहिए। अब लिवर के अंदर तो बहुत सारे एंटीजीन्स हैं और बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं, और द थिंग इज दिस कि यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट इट एंड प्रूव इट। असल बात यह है कि एक्सक्लूजन ऑफ अदर क्रॉनिक लिवर डिजीज, सारी की सारी क्रॉनिक लिवर डिजीज जितनी भी हैं या सिरोसिस जो करती हैं वो एक्सक्लूड हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि एक अल्कोहलिक है और उससे सिरोसिस हुआ है, आपने उसको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस करार दे दिया, ये गलत है। इनमें भी कोमोर्बिडिटी, वो एक अलग चीज़ है। तो liver is a target of immunity, autoimmunity. Kidney is a target of autoimmunity. There are other organs as well as the target of this immunity. तो autoimmune hepatitis के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ऑटो एंटीजीन्स हैं एंड इम्यूनो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं।
जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है ना। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की डेफिनेशन जो है वो बहुत मुश्किल है कि अनरिजॉल्विंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ द टॉलरेंस अगेंस्ट हेपेटिक टिश्यू। देखिए ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, अभी जो है सिरोसिस ऑफ द लिवर हुआ नहीं है। सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए आपको शराइत पूरी करनी पड़ेंगी जो हम पहले बता चुके हैं। अभी ये मैनेजेबल केस है, खाली आपको जो है ना इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर मिलना है and loss of tolerance against hepatic tissue. So in autoimmune hepatitis, biochemically the gamma globulin that is stimulate होगी, वो बनती वहीं पे है, तो auto antibodies will be produced. It is also formed in the lymph glands. Histologically there interface hepatitis है, लेकिन वो फेस टू फेस हेपेटाइटिस कहलाता है, यानी एक जो लिवर ग्लोबुल है उसका दूसरा लिवर ग्लोबुल वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। एंड देयर इज पोर्टल प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन, तो पोर्टल ट्रैक्ट है वहाँ प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन होना चाहिए। इंटरफेस हेपेटाइटिस पीस मील नेक्रोसिस, ये क्या करता है कि पीस मील तो समझते हैं आप लोग क्या चीज़ होती है। गोश्त को लें और तो उसको लेके छुरियाँ मारना शुरू कर दीजिए, पीस का छोटे छोटे टुकड़े काटना शुरू कर दीजिए। इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एरोजन ऑफ द हेपेटिक पेरेन्काइमा एट जंक्शन विद द पोर्टल ट्रैक्ट्स ऑफ फाइब्रस सेप्टा। अब यहाँ पे नेक्रोसिस होता है, पीस में नेक्रोसिस, तो वहाँ पे उसके बाद उसको उठाया जाएगा उसको दफनाने के लिए। ज़ाहिर है फाइब्रोब्लास्ट आएंगे तो फाइब्रोसिस होगा, और फाइब्रोसिस अब जो होगा वो इंटरफेस होगा, लोब्यूल टू लोब्यूल होगा, इसलिए फाइब्रस सेप्टास आर डेवलप्ड पोर्टल ट्रैक्ट्स के साथ, पोर्टल ट्रैक्ट्स। तो autoimmune hepatitis, the biochemically therefore the gamma globulin antibodies are produced with the specific antibodies, ANA, smooth muscle antibodies, and anti-liver kidney microsomal 1 antibody. देखिए anti-LKM1 antibody are the antibodies which are related with the autoimmune hepatitis. एंटी जो है वो LKM2 भी होती है, वो जो होती है वो ज़्यादातर एसोसिएटेड होती है वो ड्रग इंड्यूस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस के साथ, वो भी एक प्रॉब्लम है। और एंटी LKM3 ज़्यादातर जो होती है वो हेपेटाइटिस सी के साथ होती है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के साथ होती है। तो नीदर पैथोजेनिक नॉट डिजीज स्पेसिफिक। अब इसमें जो है ना आप ये नहीं बता सकते कि डिजीज़ बिल्कुल स्पेसिफिकली कौन सी है इसमें से, और पैथोजेनेटिक भी नहीं बता सकते। खाली अगर मिल भी जाए आपको, खाली आप ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बता सकते हैं। एक्सप्रेशन वेरी ड्यूरिंग द ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कोर्स, डोंट प्रिडिक्ट हिस्टोलॉजिकल इंजरी। तो इसके अंदर जो है ना वो वेरी करता है, कोर्स वेरी करता है पेशेंट का। लेवल डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, डू नॉट नीड मॉनिटरिंग। So conventional antibodies were the ANA and SMA and anti-LKM1, and evolving antibody जो प्रोड्यूस होंगी वो एंटी-आगरा एंटीबॉडीज है। ये आगरा जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, और इसी तरह लेसिथिन एंटीबॉडीज हैं, और SLA सॉल्युबल लिवर एंटीजन एंटीबॉडीज हैं, ANCA एंटीबॉडीज हैं, एंटी एक्टिनेबल एंटीबॉडीज हैं। इसके अलावा तकरीबन 123 एंटीबॉडीज और हैं। आप कहाँ तक रहेंगे? दे आर इवॉल्विंग एंटीबॉडीज, दे आर एक्टिंग ऑन द लिवर, दे आर डिस्ट्रॉइंग द लिवर। तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस नीदर इज डिजीज स्पेसिफिक, एब्सेंस डू नॉट प्रिक्लूड डायग्नोसिस। डिजीज स्पेसिफिक नहीं है, डायग्नोसिस जो है ना ये आप सिर्फ बनाएंगे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की, ये नहीं बता सकते कि ये RA है के साथ ये इसका कोई दूसरा नाम दे दिया जाए, ये नहीं बोल सकते। हिस्टोलॉजिकली आपको जो दो चीज़ें चाहिए, एक इंटरफेस हेपेटाइटिस चाहिए, एक पोर्टल प्लाज्मा सेल चाहिए, और एविडेंस ऑफ द ऑटो एंटीबॉडीज चाहिए। लिवर बायोप्सी एस्टेब्लिश डायग्नोसिस इज डिजीज सीवियरिटी, नीड फॉर द ट्रीटमेंट एंड थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग। डायग्नोसिस presence
ज़रूरी है जिसका वो बायोकेमिकल एविडेंस है, हिस्टोलॉजिकल है, दोनों मैंने बता दिए। एक्चुअली ये है कि विल्सन डिजीज़ तो नहीं है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी तो नहीं है, हेपेटाइटिस सी वायरस से या हेपेटाइटिस बी वायरस ने तो कॉज नहीं किया, ड्रग इंड्यूस तो नहीं है, अल्कोहल इंड्यूस तो नहीं है, अदर डिजीजेस विच कैन कॉज क्रॉनिक हेपेटाइटिस वो तो नहीं है। Now diagnostic criteria is classification. Now this is very interesting. There are 4 types of autoantibodies. Type 1 positive ANA and anti-smooth muscle antibodies. This is classical form. It responds well to the steroids. ये वो हैं जो बच्चे ज़्यादातर जो होते हैं, औरतें होती हैं और यंग वीमेन होती हैं ये ज़्यादातर। टाइप 2 ये कि पॉजिटिव LKM1 टिपिकली फीमेल चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, मगर डिजीज़ कैन बी सीवियर। LKM2 मैंने बताया था कि ये जो होती है ये ड्रग इंड्यूस होती है ज़्यादातर, और LKM3 जो होती है वो हेपेटाइटिस सी वायरस क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के साथ एसोसिएटेड होती है। ज़्यादातर इसमें LKM1 होती है। टाइप 3 वो है जो पॉजिटिव एंटीबॉडीज अगेंस्ट सॉल्युबल लिवर एंटीजीन SLA, एंटी-SLA एंटीबॉडीज़ हैं। टाइप 4 ये है कि वो इवॉल्विंग एंटीबॉडीज़ हैं, वो आप पकड़ ही नहीं सकते, आपके पास फैसिलिटीज नहीं है। मैंने आपको बताया था ना इवॉल्विंग एंटीबॉडीज़ कि एंटी एक्टिन एंटीबॉडीज़ और आगरा एंटीबॉडीज़ और फला एंटीबॉडीज़। असल में लुबेल अब ये है कि इंटरफेस हेपेटाइटिस होना चाहिए इसके अंदर, और पेरिपोर्टल फाइब्रोसिस होना चाहिए इसके अंदर, विथ सम एविडेंस ऑफ एनी एंटीबॉडीज विच आई हैव जस्ट डिस्कस। दिस इज कॉल्ड ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। टाइप 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। ये हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस है बेसिकली, अलॉन्ग विद द सीरोलॉजी। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये होगा, लैब फीचर्स पहले देख लें आप, फॉलोड बाय ऑटो एंटीबॉडीज़ का फीचर आपके एविडेंस होना चाहिए, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग होनी चाहिए, लिवर बायोप्सी बताए, इसहा का नोडल जो क्लासिफिकेशन है इसकी, उसका स्कोरिंग क्या है, नॉन टॉक्सिक और अल्कोहल इंजरी होनी चाहिए इसमें, और नो टॉक्सिक इसमें कोई एविडेंस इसका नहीं होना चाहिए, और नो एक्टिव वायरल इन्फेक्शन होना चाहिए, नो जेनेटिक लिवर डिजीज होना चाहिए, नो इसके अंदर आपको मेटाबॉलिक लिवर डिजीज होनी चाहिए। अब स्कोरिंग सिस्टम इन्होंने बनाया अमेरिकन ने कि प्लस पॉइंट क्या है इसके नंबर दे दिए इन्होंने कि जेंडर फीमेल में ज़्यादा होता है AL की, और AST बड़ा हुआ होता है, IgG बड़ा होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ में ज़्यादा होती हैं, सीरोलॉजी मुख्तलिफ पॉजिटिव होती है, अल्कोहल की भी हिस्ट्री होती है, ऑटो एंटीबॉडी इसके अंदर होती हैं, आगरा की जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं वो भी होती हैं, हिस्टोलॉजी प्रूव करती है, HLA स्पेसिफिक होती हैं ये, एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सिव होती हैं। ये प्लस पॉइंट्स हैं इसके। नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं इसके माइनस वो है कि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ है, तो ये प्राइमरी स्क्लेरोटिक एनांजाइटिस बन जाएगा, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। और ड्रग्स इंड्यूस हैं तो वो जाहिर है कि एंटी LKM2 एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और वो आपको पता चलेगा कि ये ड्रग्स दी गई हैं, इससे जो है ना लिवर डिस्ट्रॉय हुआ है। इसकी सीरोलॉजी स्पेसिफिक होती है, यानी इसके अलावा सीरोलॉजी भी तो आ सकती है ना, खाली ये तो नहीं है कि यही सीरोलॉजी मैंने जो आपको बताई है, सीरोलॉजी तो बहुत सारी होती है। तो कोई और सीरोलॉजी ऐसी आ गई है जो कि लिवर से रिलेट ही नहीं करती, वो नेगेटिव पॉइंट है। अल्कोहलिज्म नेगेटिव पॉइंट है। हिस्टोलॉजी जो कि आपको नहीं बता रहा हो वो चीज़ मैंने पहले बता दी थी कि एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन प्लस एविडेंस ऑफ नेक्रोसिस प्लस एविडेंस ऑफ फाइब्रोसिस प्लस एविडेंस ऑफ रीजनरेशन। अब ये चीज़ इसमें आ नहीं रही है, कुछ मिल रही है कुछ नहीं मिल रही है। एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ है इसके अंदर, गामा GT बढ़ा हुआ है या AST बढ़ा हुआ है, लेकिन ALT नहीं बढ़ा, ALT का कोई जिक्र नहीं है। ये माइनस पॉइंट्स हैं इसके। अब इसको अगर जमा कर लिया जाए तो डेफिनेट वो होगा जिसके 15 पॉइंट से ज़्यादा हों प्री ट्रीटमेंट, और पोस्ट ट्रीटमेंट जो है वो 17, ट्रीटमेंट लिए ही नहीं उसने,
तो डायग्नोसिस हो जाएगी। और प्रोबेबली अगर आप प्रोबेबल कहें कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है तो प्री ट्रीटमेंट 10 to 15 स्कोरिंग हो और पोस्ट ट्रीटमेंट 12 to 17 तो फिर ये कहा जाएगा कि भाई ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है। रिकमेंडेशन ये है कि अमाइनो ट्रांसफर गामा ग्लोबुलिन लेवल्स ANA और SMA और anti-LKM1 लिवर टिश्यू एग्जाम। जैसे मैंने आपसे कहा कि सीरोलॉजी प्लस लिवर बायोप्सी विल डिसाइड द डिजीज originating from the liver, and that is autoimmune disease. AHA diagnostic criteria applied to all patients scoring method and the autoimmune hepatitis scoring method. If the diagnosis is not clear, then it should not be labeled as the autoimmune hepatitis. Treatment, it improves. Symptom will improve. Lab tests will be definitely improved. Histological findings will be जो पहले से जो स्कोरिंग सिस्टम है वो रिड्यूस। सर्वाइवल 20 लाइफ ईयर्स एक्सपेक्टेंसी है इसमें। इम्यूनिटी नाउ वो जो मैंने पहले बताया था, इट इज़ नाउ उसने टारगेटिंग लिवर को टारगेट कर रही है। ड्रग्स कॉजिंग द लिवर इंजरी, ड्रग्स जो देते हैं आप ज़ाहिर इसी ट्रीटमेंट में देते हैं ना, वो खुद इंजरी कर सकती है। बुनियादी जो ड्रग है वो है प्रेडनिसोलोन। इसको 1 to 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट दें, लेकिन इसको लंबे अरसे तक देते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ हेपेटोलॉजी इट शुड बी एटलीस्ट 1.5 to 2 years। इससे फ़ायदा ना हो तो प्रेडनिसोलोन को एज़ोथ्रोपिन should be given 50 milligram. If the condition is severe, it can be given 100 to 150 milligram. Other drugs can be used: cyclosporin, urodeoxycholic acid, 6-marcoxypyrin, methotrexate. Cyclophosphamide as the last resort should be used. Mycophenolate, mofetil, very good drug, and rapamycin, not available in Pakistan, is again very good drug. मगर जो बुनियादी जो ड्रग्स हैं दैट थिंग प्रेडनिसोलोन प्लस एज़ोथ्रोपिन 80 to 90% are benefited. Who should be treated? The progress to cirrhosis 82% within 5 years. Severe disease should be treated. Mortality is 45%. Mild moderate disease progress to cirrhosis in 49% with 15 years and 10 years survival of 90%. Untreated patients with the interface hepatitis have 17% probability of cirrhosis within 5 years and a normal 5 years life expectancy. डिपेंड करता है माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, सीधी बात है। इसको अगर पढ़ें आप इस तरह से तो सीवियर डिजीज़ के लिए चांस कम होता है, लेकिन फिर भी वो मैनेजेबल है। एक अच्छी चीज़ ये है कि मैनेजेबल डिजीज़ है। इफ इट इज सीवियर डिजीज़ the AST is 100 times normal, AST is 5-4 normal, plus gamma globulin levels are 2 times higher with bridging necrosis and multi-acinide necrosis. ये सीवियर डिजीज है, इट शुड बी ट्रीटेड और इसको ट्रीट भी करना चाहिए ठीक ठाक दम लगा के। वो कहते हैं ना 5 मिलीग्राम की गोली खा रही हूँ मैं डॉक्टर साहब डेल्टाकॉटल, उससे कुछ नहीं होता जी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो माइल्ड डिजीज़ में AST एंड गामा ग्लोबुलिन एंड लेस देन एब्सोल्यूट क्राइटेरिया इंटरफेस हेपेटाइटिस है। क्लिनिकल जजमेंट है आपकी, बेनिफिट रिस्क रेशियो, आप चाहें तो ट्रीटमेंट दें, आप चाहें तो ट्रीटमेंट ना दें, ये आपकी जजमेंट पे होती है। रिकमेंडेशन ये है कि सीवियर डिजीज़ 3 स्टार, सिम्टोमेटिक डिजीज़ 2 स्टार, इंटरफेस हेपेटाइटिस अलोन डज नॉट कंपेल ट्रीटमेंट 3 स्टार, treatment not indicated in patient with inactive cirrhosis, pre-existing comorbid condition 3 star, and treatment in most children is 2 star. 2 star वालों में आप वेट कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं दूसरे तरीके से। तो regime that prednisolone is concerned, you will give the prednisolone 20 milligram to and leading to 60 milligram and then taper it off.
Now, cytopenia occurs with thiopurine methyl transferase deficiency and malignancy. Because ये the steroid के अपने side effects हैं. This will cause the thrombocytopenia, this will cause leukopenia, this will cause the diabetes, this will cause the osteoporosis. तो ये जो रिजीम है इसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ एज़ोथ्रोपिन डाल देंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा द प्रेडनिसोलोन की डोज कम हो जाएगी. इसलिए क्या करते हैं कि इन रिजीम में आप 30 मिलीग्राम 20 या 10 जैसे भी आप दे रहे हैं प्रेडनिसोलोन, इसके अंदर 50 मिलीग्राम एज़ोथ्रोपिन को डाल दीजिए. एंड दैट इज़ द आंसर कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स स्टेरॉइड्स के कम हो जाएंगे. सो पोस्ट मेनोपॉज़ल ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रिटल डायबिटीज मेलिटस, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन एंड इमोशनल लायबिलिटी जो है, यूफोरिक जो होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा यूफोरिक होता है, वो बहुत कम हो जाएगा. देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. थेरेपी शुड नॉट बी इंस्टीट्यूटेड विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग इंडेफिनिट. द न्यू जो है मैंने बताया आपको, वो 1.5 से 2 साल रिकमेंडेशन है. इन अमेरिकन कॉलेज ऑफ हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसे 2 साल तक दें. ट्रीटमेंट एंड पॉइंट ये है कि रिमिशन रिलैप्स उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाहिए, या ये कि हेपेटिक फेलियर में मरीज चला गया है, या फिर इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स हो गया. ये ट्रीटमेंट एंड पॉइंट्स हैं इसके. इन इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स अगेन you have to manage the patient with the drugs, of course, and in the failure again you have to aggressively treat the patient. The pattern of response is in remission, and 80% of cases remission relapse. Histological improvement करता होता है, फिर हो जाता है दोबारा. बायोकेमिकल इम्प्रूवमेंट होता है, 90% हो जाता है. मेरे पास जो केसेस हैं 3, तीनों हयात हैं, और वो जो है अभी भी जो है वो एज़ोथ्रोपिन पे हैं विद प्रेडनिसोलोन लो डोज पे, एंड दे आर डूइंग वेल. उनका जो लिवर स्पैन भी नॉर्मल है, उनका जो सीरोलॉजी है वो काफ़ी बेहतर है, उनका लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत बेहतर है. अब जो है ना इसके अंदर इन द एंड अगर फर्ज करें कि वेरी सीवियर डिजीज रिलैप्स लिमिट होती है बार बार, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इसमें दिया, इट इज़ द लास्ट थिंग टू डू. इट इज़ इंडिकेटेड इफ डिटोरेशन अकर ड्यूरिंग और आफ्टर द स्टेरॉइड ट्रीटमेंट. 5 years पे पेशेंट एंड ग्राफ्ट सर्वाइवल इज 83 to 92%, and autoantibodies disappear within 1 year. Disease recurrence is mild, is 10 to 35%. 35% में इवन न्यू लीवर के अंदर भी आ जाती है. Anyway, the thing is that the disease, ये वो disease है जिसको disease of exclusion कहता हूँ. This is the chronic hepatitis of exclusion. I hope the lecture is, although it is a difficult one, but you have learned it, and I have tried to clear the points regarding the autoimmune hepatitis. Some are things very new to you. I hope you have enjoyed this discussion, and inshallah ta'ala we will meet very soon. Allah Hafiz.